ठीक है. So in case not, yesterday we were discussing about M&A. I think हमारा यहाँ तक हो गया. Correct. So last time, no questions? Okay. Now the next part of this module is the process for raising funds from private equity. So just to refresh your memory, what do you mean by private equity? हमने discuss किया था. So private equity, दो type की equity होता है, private equity and public equity. So public equity is one which you raise when you raise equity from public through IP or FPO. When you are an unlisted company and you decide not to reach out to the public and you decide to reach out to a selected set of investor privately for raising equity, that segment or that alternative route of raising equity is called as private equity. So any question on that before we start off this? Is everybody clear with private equity? Any questions, query on that? Sir, can you repeat that, please? My network problem के वजह से ठीक से सुनाई नहीं दिया. So private equity means when you are raising equity from a private set of investors, and you decide not to reach out to the public at large. Okay, sir. Yes, sir. We are clear, sir. Hello, sir. Can we say other than IPO, every form of fundraising is a private equity? Sorry, every IPO. Sorry, come again. Sir, can we say other than IPO, other form of fundraising is an private equity? No. नहीं, because IPO के अलावा FPO भी होता है and there are rights issue as well. So वैसे ठीक नहीं रहेगा. So for private equity, as I said, it should be when you reach out to the selected set of investors privately. That is called as private equity. Okay, sir. ये FPO जो है सर, IPO एक बार ये हो जाता है, आ जाता है, उसके बाद जो करते हैं वो FPO. कैसे सर FPO? So FPO is a further public offering or follow-on public offering. So when company first time अपने shares issue करती है first time, उसको IPO बोलते हैं. That is why it's called as initial public offering. Initial का मतलब है first. Now उसके बाद when company is issuing second time or third time those shares to the public, तो वो FPO हो जाता है. सर लेकिन सेकेंड टाइम मैंने जैसे अगर IPO आ गया, जैसे डीमार्ट का IPO आ गया, ओके, डीमार्ट का IPO फर्स्ट डे लिस्टेड हो गया, उसके बाद अगर मैं बाय करता हूँ, ओके, BSE या NSE, तो वो FPO हुआ क्या सर? Sorry, come again. सर IPO जैसे अभी फॉर एग्जांपल डीमार्ट का IPO आ गया, ओके, आज लिस्ट हो गया, और आज लिस्ट हो गया, जिसको लगा वो उनको IPO लग गया, लेकिन कल अगर मैं मार्केट से अगर बाय करूँ तो वो FPO हुआ क्या सर? नहीं, वो FPO नहीं हुआ. जो कल आप मार्केट से बाय करोगे वो सेकेंडरी मार्केट हुआ. Let's say in future after 1 month, after 1 year, DMart again comes and say, okay, I'm offering more 100 shares, additional 100 shares in the market. वो FPO होगा. ओके, मतलब सेकेंड टाइम अगर वो लोग फंड रेस करते, दैट इज FPO. सेकेंड टाइम और एनी टाइम आफ्टर सेकेंड टाइम, थर्ड फोर्थ कुछ भी हो सकता है. ओके. फर्स्ट टाइम को IPO बोलते हैं, उसके बाद जो होता है वो उसको FPO बोलते हैं. ओके, ठीक है, समझ गया.
भाऊ कह रहा मैं पर हाँ जी, ओके सर, क्लियर। ठीक है। So please pay attention. This is an important part because there's a lot of jobs, especially what's happening between India and China. So there's a काफी सारा investment is expected to move towards Indian markets, and hence private equity is likely to be more. See, probably private equity would be more active in next couple of years. So थोड़ा सा from a job market perspective ये part ज़्यादा important है, ठीक है? So please pay attention. So now the question is, if you're investing in, let's say, IPO or FPO is not an option, easy option for you, because generally if you're a startup company, then it's not easy to go out and list yourself. So you generally go for the private equity space. And how do you get that funding? That is what this section will explain. Okay. So in terms of process, so the first is an information checklist. So you prepare, you get all the information. जो भी information चाहिए होती है, so private equity को आपको जो information चाहिए होती है, आपको कितनी funding चाहिए, क्यों चाहिए, आपका business model क्या है, आपके forecast क्या है, आपके वैल्यूएशन क्या है, जो मॉडलिंग हमने बनाई है ना, एग्जैक्टली वही मॉडल बना के आप प्राइवेट इक्विटी को सबमिट करते हो, ठीक है? और प्राइवेट इक्विटी वो अदरवाइज वो खुद बनाती है, ठीक है? देन ये इंफॉर्मेशन बनने के बाद जो इन्वेस्टमेंट बैंकर है वो जनरली मार्केटिंग करता है आपकी। मार्केटिंग मींस आपके लिए ढूंढता है कि कौन सी कंपनी इन्वेस्टमेंट करने के लिए इंटरेस्टेड है। Let's assume if they are able to identify some company. सर जस्ट डिस्टर्ब कर रहा हूं सर ये OFS क्या होता है सर? OFS होता है ओपन ऑफर फॉर सेल। ओके, एक मिनट राइट डाउन। हाँ, so OFS में क्या होता है कि लेट्स अज्यूम कंपनी के प्रमोटर के पास या कंपनी के कोई सिग्निफिकेंट मैनेजमेंट है, उसके पास कुछ शेयर्स हैं, तो कंपनी वो शेयर्स उससे पब्लिक को ऑफर करवा देती है, उसको ऑफर फॉर सेल बोलते हैं। सो दीज आर नॉट न्यू शेयर्स, दीज आर एग्जिस्टिंग शेयर्स, बट एग्जिस्टिंग शेयर्स वो किसी सीनियर मैनेजमेंट या किसी प्रमोटर के पास हैं, वो पब्लिक को ऑफर हो जाते हैं। ओके, अभी जो बीच में वेंडेंट का आया था वो OFS का मतलब वो कंपनी का जो है एग्जिस्टिंग वही वो सेल के लिए ये करते हैं। यस, सो डिफरेंस ये होता है कि वो कंपनी के किसी मैनेजमेंट के पास है, अब वो पब्लिक के पास शेयर्स चले जाएंगे। बट टोटल नंबर ऑफ शेयर्स उतने ही रहते हैं, पहले भी 100 थे, अभी भी 100 रहेंगे। जो हम लोगों ने इनिशियल रेस किए। करेक्ट। ओके, ओपन फॉर सेल राइट सर? ऑफर फॉर सेल। ऑफर फॉर सेल, ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। और FPO में क्या होता है सिद्धार्थ, FPO में नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज हो जाते हैं बिकॉज आप और नए शेयर्स ऑफर करते हो। ये डिफरेंस है OFS में और FPO में। ओके सर, ठीक है, मैं लिख लेता हूं। सो देखो मार्केटिंग होता है, मार्केटिंग करके आप आइडेंटिफाई करते हो कि कौन इंटरेस्टेड है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, और जो इन्वेस्टमेंट करने के लिए इंटरेस्टेड है अगर वो एग्री हो जाता है तो एक टर्म शीट साइन होती है। व्हाट इज दिस टर्म शीट? इस टर्म शीट में सारे टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं कि फंडिंग देगा, किस रेट पे देगा, कैसे देगा, क्या क्या टर्म्स है, वो क्या रिटर्न चार्ज करेगा आपसे, ऑल दोस थिंग्स आर गेट डॉक्यूमेंटेड इन दिस टर्म शीट। एंड देन ड्यू डिलिजेंस होता है। ड्यू डिलिजेंस मैंने लास्ट क्लास में आपको एक्सप्लेन कर दिया, एग्जैक्टली सिमिलर ड्यू डिलिजेंस होता है। ड्यू डिलिजेंस का मतलब वही है कि आप वो चेक्स कर रहे हो कि सब ठीक है कि नहीं है। प्राइवेट इक्विटी आपके स्टार्टअप पे या आपके बिजनेस आइडिया पे आपके जो क्रेडेंशियल्स हैं, अगर आपके लाइसेंस है, वो सब चेक करेगा, कुछ गलत तो नहीं है। एंड देन फाइनली वो डॉक्यूमेंट होता है, पैसा दिया जाता है, इन्वेस्टमेंट दिया जाता है और वो क्लोज किया जाता है। दिस इज ब्रॉडली द प्रोसेस, ठीक है। इसमें जो ज्यादा इंपॉर्टेंट पीस आपको इस समझने की जरूरत है, इसकी मॉडलिंग कैसे होती है, वो हम लोग कर चुके हैं। एंड लकीली फॉर एटलीस्ट फॉर योर बैच आपने बिकॉज स्टार्टअप की ही करी है, बिकॉज यू रिक्वेस्टेड की थोड़ा सा आपको ज्यादा वो साइड पे देखना था, तो आप काफी वेल प्लेस्ड हो
into this piece because ये exactly वही मॉडल है जो प्राइवेट इक्विटी सेगमेंट में होता है. ठीक है. Any doubt on this slide? Collateral preparation. Collateral preparation. So collateral preparation is the same. So जो हमने क्लाइंट कह रहा हूँ, हमने क्लाइंट से जो इन्फॉर्मेशन लिया उसके बाद जो हम वो मॉडल बनाते हैं, वो जो प्रिपरेशन करते हैं टू सी कि उसकी क्या वैल्यू आ रही क्या आ रही, वो कोलैटरल प्रिपरेशन पार्ट है. जो हमने एक्सेल में मॉडल करा वो कोलैटरल प्रिपरेशन पार्ट होता है. अब एनालाइज करते हैं ना इन्फॉर्मेशन लेने के बाद कि इसका क्या वैल्यू है, इज इट गिविंग रिटर्न्स, नॉट गिविंग रिटर्न्स, वो वाला पीस है. तो मतलब ये वैल्यूएशन है क्या सर? नॉट ओनली वैल्यूएशन. सर जस्ट कोलैटरल मीनिंग होता है कि हम किसी के बिहाफ पे हम कुछ रख रहे हैं, मतलब कोलैटरल सिक्योरिटी टाइप है. हाँ, तो मैं वही कर रहा हूँ ना. तो मैं नहीं करेक्ट, कोलैटरल को मतलब बट अगर मैंने आपसे इन्फॉर्मेशन लिया और मुझे लोन देना है तो मैं उसको बैकअप, उसका बैकअप क्या है, उसका बैकअप मैं आपसे लैंड ले लूं कि या कोई लैंड कोलैटरल दे दो. दैट इज वन वे. उसका बैकअप ये भी तो है कि मैं जो मॉडल बना रहा हूँ उसकी वैल्यू से मैं कन्विंस्ड हूँ कि इसमें इतनी वैल्यू बैकअप में है, इसलिए मैं आपको इतना फंडिंग देने के लिए रेडी. समझ आया आपको? यस तो सर. कोलैटरल का मतलब होता है ये किसके सपोर्ट में, इसके बैकअप में क्या चीज है. ओके, मैं कंफ्यूज हो गया उसके संग, कोलैटरल सिक्योरिटी के संग कंफ्यूज कर. नहीं अंडरस्टैंड. हाँ, तो जनरली वैसा ही अंडरस्टैंडिंग लेते हैं, बट वैसा ही है. तो अगर मैं आपको लोन देता हूँ तो आप मेरे को लैंड कोलैटरल कर देते हैं, बट अगर मैं आपको इक्विटी इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो इक्विटी में तो कोई कोलैटरल नहीं होगा ना फिजिकल एसेट का. यस सर. तो इक्विटी इन्वेस्ट करने के लिए कोलैटरल क्या होगा, मतलब उसका बेसिस क्या होगा, उसका बैकअप क्या होगा, उसकी वैल्यूएशन, फोरकास्टिंग, मॉडलिंग वही होगा ना उसका बैकअप. ओके सर. सर हम ऐसे बोल सकते हैं कि किसी स्टार्टअप के केस में उसका जो फ्यूचर कैश फ्लोज है जो हम अज्यूम कर रहे हैं वही वहां पे कोलेटरल हो जाएगा. सॉरी, रिपीट करो. सर किसी स्टार्टअप के केस में हमने जो उसका फ्यूचर कैश फ्लो अज्यूम किया है वही यहाँ पे कोलेटरल हो जाएगा. वो भी हो सकता है, बट उसके बाद उतना ही नहीं होता, आप उससे ज्यादा आगे जाते हो और आप उसके मॉडल करके वैल्यूएशन भी लेके आते हो ना, ये इसकी ये वैल्यू आ रही है. सो इट्स नॉट ओनली कैश फ्लो, इट्स लिटिल मोर देन द कैश फ्लो. Sir, two questions. One is what kind of companies act as private equity firms? मतलब or secondly, how do they exit? Is that FPO, IPO, and they can use OFS, or what is the thing, sir? So who can be private equity? From a law perspective, there are certain criteria that you need to have net worth of this amount, and again that varies from country to country. Okay, but apart from those statutory requirements, anybody who has a फंडिंग कैपेसिटी, मतलब आपके पास पैसा है और आप इन्वेस्ट करने के लिए इंटरेस्टेड हो तो आप वो प्राइवेट इक्विटी फर्म बन सकते हो ना. सर इंडिविजुअल भी? हाँ, इंडिविजुअली बन सकते हो, बट वो इंडिविजुअल वो क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर पाएगा बिकॉज यू नीड टू रजिस्टर योरसेल्फ एज अ कंपनी. बट अगर आप इंडिविजुअल स्पेस में, लेट्स से टुडे अगर आपके पास, आपका कोई फ्रेंड आता है कहता है मेरे पास आइडिया है राहुल, पैसा लगा दो, तेरे पास पैसा, तो इंडिविजुअल पैसा लगा, टेक्निकली तो प्राइवेट इक्विटी है ना वो. हाँ सर. करेक्ट. So, but that will not fall into the legal space, correct? Unless you register yourself. Okay, okay, sir.
Then second part of your question in terms of how the private equity can exit. So there are different permutation and combination which are available for the exit. So one could be, let's assume, IPO. So एक unlisted company है, से suppose आपने अपनी friend की एक unlisted company में पैसा लगाया, वो private equity हो गया. After 5 years, suppose आपको exit करना है, your friend से ओके मैं कंपनी को लिस्ट कर देते हैं. जब लिस्ट करेंगे जो तेरे शेयर्स है वो ऑफर कर देंगे मार्केट में. So that is the way to exit. Okay, sir. Understood. Another could be after 5 years, let's say you want to exit and let's say सिद्धार्थ को इस कंपनी में पैसा लगाना. So कंपनी लिस्ट नहीं करते हैं, तो तुम अपने शेयर सिद्धार्थ को भेज देते हो, तो you exit and सिद्धार्थ step in. Still the company remains unlisted company. तो ये second method है. हाँ सर. So इस तरीके से प्राइवेट इक्विटी जनरली एग्जिट करते हैं. ठीक है. Any other doubt? सर एक फॉलो अप क्वेश्चन कर रहा हूँ. बोलो. Like how we can go on any exchange and see the rate of a company like that. For private equity, over the counter exchanges होते हैं क्या? I know there is over the counter exchanges, but trading होता है क्या between private firms itself? जैसे हम पब्लिक में करते हैं. ट्रेडिंग होने के लिस्टिंग होना जरूरी है ना. प्राइवेट इक्विटी में जनरली मोस्ट ऑफ देम इज अनलिस्टेड सेगमेंट. तो ट्रेडिंग कैसे होगी उसमें? सर थोड़ा वापस बोले, ठीक से सुनाई नहीं दिया. नहीं होता प्राइवेट इक्विटी में ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट नहीं है, बिकॉज ये लिस्टेड नहीं है. ओके सर. ओके, थैंक यू. Okay, so in case no questions, so now ये मैंने आपको बताया. सो इंफॉर्मेशन आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो सारा, ठीक है, फ्रॉम द क्लाइंट, एंड देन बेसिस दैट आप वो एनालाइज करते हो. ठीक है. दिस इज वेयर द कोलैटरल के अंदर जो मैंने आपको बताया मॉडल बनाते हो. करेक्ट. आप पूरा इन्वेस्टमेंट का एनालिसिस करते हो, रिसर्च करते हो. ठीक है. And then you finally prepare your final model around this. आप अपने मैनेजमेंट को प्रेजेंट भी करते हो अगर आपको करने में इंटरेस्टेड है. So this is exactly what you do in a collateral preparation. ठीक है. उसके बाद वो मार्केट करते हो आप डिफरेंट इन्वेस्टर्स को जाके बोलते हो कि ओके हमारा ये मॉडल है, हमारा ये आइडिया है, हमारे क्लाइंट है, आप इंटरेस्टेड हो या नहीं हो. तो इसको पूरा मार्केटिंग बोलते हैं. एनी डाउट इन दिस स्लाइड? ये लास्ट कौन सा टीजर प्रिपरेशन? ये वाला हाँ. टीजर प्रिपरेशन होता है छोटा. आपने फुल फ्लेज मॉडल बनाया, बट हर एक क्लाइंट को जाके आप उतना मॉडल डिटेल में तो ना एक्सप्लेन करोगे. तो इसका एक छोटा प्रेजेंटेशन बना लेते हैं और फिर वो प्रेजेंट करते हैं. जैसे मैंने आपको बोला आपको एक प्रेजेंटेशन बनानी है, तो जो आप प्रेजेंटेशन करोगे वो आप लेट्स यू माइट डू रिसर्च ऑफ लेट्स यू आपका जो रिसर्च होगा उसमें लेट्स यू इन्फॉर्मेशन 100 पेजेस की है, लेट्स अज्यूम दैट. बट आप थोड़ा 100 पेजेस की पूरी इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट करोगे. आप उसका एक स्मॉलर वर्जन 10 स्लाइड्स का 20 स्लाइड्स का इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट करोगे. दैट इज कॉल्ड अ टीजर. एक स्मॉल प्रेजेंटेशन होता है, फिर डिटेल्ड एनालिसिस, उसको टीजर बोलते हैं. सिर्फ वीडियो में नहीं होता है, मूवीज में नहीं होता है. एक ट्रेलर आता है पहले, उसको टीजर बोलते हैं. फुल मूवी का आपको ट्रेलर, उसको आपको एक पर्सपेक्टिव पता लगता है क्या है, उसको टीजर बोलते हैं. ठीक है. सर ये सेकेंडरी रिसर्च कोलेटरल प्रिपरेशन में जो आप मॉडलिंग करोगे, एनालिसिस करोगे, तो रिसर्च तो करोगे ना. कुछ इन्फॉर्मेशन अगर आपको जरूरत हुई तो, जैसे मॉडलिंग में हमने रिसर्च करा था व्हीकल्स कहाँ से आते हैं, कितना है, सब रिसर्च ही तो है. सेकेंडरी. ओके सर, सेकेंडरी डेटा से दैट मींस. करेक्ट. प्राइमरी तो वो हो गया जो क्लाइंट ने आपको खुद दिया, वो प्राइमरी हो गया. और जो क्लाइंट ने आपको नहीं दिया है, अवेलेबल नहीं है, वो कहीं और से आप सर्च करते हो ना. यस सर, यस सर, गॉट इट.
ठीक है, मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड. सो टर्म शीट. तो ड्राफ्ट टर्म शीट, इसमें टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं. ठीक है, और यहाँ पे लॉयर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं बिकॉज वो टर्म शीट में लीगल क्लॉजेस होते हैं. ठीक है, फाइनल नेगोशिएशन होते हैं, ऑफर्स होते हैं उसके अंदर, एंड फाइनल सिलेक्शन होता है. फाइनल कौन सा इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने के लिए रेडी होता है, वो फाइनल एग्रीमेंट हो जाता है. फिर वो ड्यू डिलिजेंस होता है. मैंने आपको समझा दिया ड्यू डिलिजेंस कैसे होता है, लास्ट क्लास में बात किया. और उस ड्यू डिलिजेंस करने के बाद एवरीथिंग कम्स गुड, देन फाइनल डॉक्यूमेंट होता है. एसपीए शेयर परचेज एग्रीमेंट साइन होता है. ठीक है, ये वो एग्रीमेंट होता है. दैट एग्रीमेंट इज अ लीगल डॉक्यूमेंट ऑफ सेलिंग एंड बाइंग द शेयर्स. एंड देन फाइनल आपके शेयर्स ट्रांसफर होते हैं और वो ट्रांजैक्शन होता है. Any doubt on this slide? The SPS stands for Share Purchase Agreement. ठीक है, so no questions on the slide, correct? ये दो स्लाइड इंपॉर्टेंट है गाइस, 34 एंड 35. और अगर आपको इसका स्मॉलर वर्जन देखना है तो आप स्लाइड 33 भी देख सकते हैं. डिपेंड्स आपको कौन सा वर्जन देखना है. तो अभी जो चालू था वो ये करो. सॉरी, हाँ 2 मिनट, ये थोड़ा मैं राइट डाउन कर. ओके ओके. ये सेम स्लाइड्स आपके उस पे भी हैं, मॉड्यूल पे. आप नोट कर लो, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि आपको वहां पे भी मिलेंगे. ओके सर. ठीक है, ना ड्यू डिलिजेंस करने के बाद समटाइम्स देयर माइट बी सम इश्यूज, करेक्ट? तो अगर ड्यू डिलिजेंस सब ठीक ठाक होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, टर्म शीट साइन होता है, एवरीथिंग गोज वेल. इफ यू हैव अ प्रॉब्लम इन ड्यू डिलिजेंस तो क्या होता है? अगर ड्यू डिलिजेंस में प्रॉब्लम होता है, देन वो प्रॉब्लम लीगल प्रॉब्लम है कि बिजनेस प्रॉब्लम है? कैन यू गिव मी एन एग्जांपल ऑफ लीगल प्रॉब्लम? लीगल प्रॉब्लम इज कंपनी ने अपनी स्टैट्यूटरी कुछ, लेट्स कंपनी के पास लाइसेंस होना चाहिए बट कंपनी का लाइसेंस ही नहीं है, कंपनी ने झूठ बोल दिया, या वो लीगल, वो जो लाइसेंस अब एक्सपायर हुआ है, ये लीगल इशू है कि कंपनी जो जो लॉ ऑफ द लैंड है उसको फॉलो करने में कुछ पता लगे हमारे को गड़बड़ कर रखी है. क्लियर है लीगल प्रॉब्लम का मतलब क्या है? बिजनेस प्रॉब्लम है, कंपनी अपने बिजनेस को जो चला रही है उसको किसी अच्छे तरीके से नहीं चला रही, कुछ इनएफिशिएंसीज है. इट्स नॉट अ ब्रीच ऑफ द लॉ, बट कंपनी ने अपना बिजनेस अच्छे से मैनेज नहीं कर रखा है. So, ये दो कैटेगराइजेशन होती है जो ड्यू डिलिजेंस के बाद कुछ अगर प्रॉब्लम होता है तो कैटेगराइज किया जाता है. और इन सब की वजह से फिर रीनेगोशिएशन होता है प्राइस में. चेंज इन मार्केट डायनामिक क्या मींस, इसका मतलब क्या है? करा रहा हूँ मैं अभी पॉइंट 2 पे हूँ, पॉइंट 3 पे आता हूँ. पॉइंट 2 में कोई डाउट है तो पूछो. नो सर, नो. पॉइंट 3 है चेंज इन मार्केट या फिर सर अगर ड्यू डिलिजेंस में अगर आफ्टर 6 मंथ्स हमें पता चला तो रीनेगोशिएशन हो सकता है क्या? नहीं हो सकता आफ्टर कॉन्ट्रैक्ट? आफ्टर कॉन्ट्रैक्ट कैसे होगा? आपको ड्यू डिलिजेंस के टाइम में फाइंड आउट करना है ना. आपने परचेज कर लिया, उसके बाद पता लगा वो तो आपकी रिस्क, आपकी गलती है ना, आपने ड्यू डिलिजेंस ठीक से क्यों नहीं किया. सो क्लाइंट बोलता है आपको मैं आपको ड्यू डिलिजेंस के लिए ओपन हूं, आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, जो एनालिसिस करना है अभी कर लो. ठीक है, आई विल गिव यू गुड टाइम, बट पर डील हो जाने के बाद आपको कुछ पता लगे तो वो नहीं होगा फिर.
वो फिर आपका रिस्क है। Sir, but due diligence is also done from the seller side, right? Buyer भी रहता है और seller भी रहता है, so कैसे क्या करते हैं वो? तो बायर जो होता है वो ज्यादा अग्रेसिव ड्यू डिलिजेंस करता है, सेलर डज नॉट डू जो so much of a detailed or an advanced due diligence. सेलर क्या ड्यू डिलिजेंस करेगा? सेलर ड्यू डिलिजेंस करेगा कि आप जो पैसा दे रहे हो वो पैसा शुड नॉट बी एन इलीगल फंड्स, वो ड्यू डिलिजेंस करेगा। वो ड्यू डिलिजेंस करेगा कि आपके जो क्रेडेंशियल्स हैं या जो जिस अकाउंट से आप पेमेंट कर रहे हो उसमें कुछ इश्यूज नहीं है, वो सब ड्यू डिलिजेंस सेलर करता है। अदरवाइज सेलर को ज्यादा और ड्यू डिलिजेंस नहीं। तो बायर जो होता है, बायर सब कुछ चेक करता है कि जो कंपनी है ठीक है कि नहीं है, उसके लीगल इश्यूज तो नहीं है, टैक्स इश्यूज तो नहीं है, कुछ बिजनेस इश्यूज तो नहीं है, कुछ अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई मैनिपुलेशन तो करके नहीं रखा। तो बायर थोड़ा ज्यादा डिटेल ड्यू डिलिजेंस करता है। आप ऐसे समझो ना राहुल के, इफ सपोज आई एम सेलिंग कार एंड यू आर बाइंग कार, तो आप कौन ज्यादा ड्यू डिलिजेंस और चेक्स करेगा? आपकी मैं बायर करेगा ना, वही बायर कार परचेज करा। मैं क्या चेक करूंगा? अगर आप मुझे 1 लाख रुपीज पे कर रहे हो उस कार के, तो मैं सिर्फ ये चेक करूंगा कि आप कुछ इलीगल एक्टिविटी करके तो मुझे पैसा नहीं दे रहे हो, करेक्ट? दैट्स व्हाट आई विल डू, चेक्स आई विल डू फ्रॉम अ सेलर पर्सपेक्टिव। और क्या मैं चेक्स करूंगा? Yes, sir. बट एज अ बायर आप चेक करोगे, इज द कार इन अ गुड कंडीशन और नॉट, इज द इंजन इन अ गुड कंडीशन और नॉट, एंड अदर टेक्निकलिटीज आप चेक करोगे। Right, sir. ठीक है। थर्ड है चेंज इन मार्केट डायनामिक्स। सो लेट्स अज्यूम अगर वो ड्यू डिलिजेंस जब हम कर रहे हैं, मार्केट ही चेंज हो गया, जैसे कोविड है, डीमोनेटाइजेशन है, ये सिनेरियोज हैं। सो लेट्स अज्यूम आपने जब ड्यू डिलिजेंस स्टार्ट किया तो डीमोनेटाइजेशन अनाउंस नहीं हुआ था, बट अब जब ड्यू डिलिजेंस के प्रोसेस में डीमोनेटाइजेशन अनाउंस हो गया, पूरा मार्केट चेंज हो गया, पेंडेमिक आ गया, पूरा मार्केट चेंज हो गया। सो अगर ऐसा कोई मार्केट डायनामिक्स चेंज होते हैं, देन अगेन यू हैव एन ऑप्शन टू रीनेगोशिएट। सर लेकिन ये अनसर्टन है, करेक्ट? सो इसमें सेलर भी रेडी होना चाहिए ना, अगर दोनों ऐसे अरे डील होने से पहले तो चेंज हो गया, वो तो ऑलवेज हो सकता है, डील होने के बाद का नहीं है ये। राइट, हम लोग डील नहीं फाइनल किया, करेक्ट सर, राइट। सर फॉरेक्स वाला सिनेरियो भी हो सकता है क्या? फॉरेक्स करेंसी, जो फॉरेन करेंसी में हाँ, तो वो भी चेंज इन मार्केट डायनामिक्स ही तो है। फॉरेन करेंसी जो चेंज होगा वो मार्केट डायनामिक्स नहीं होगा। यस सर। ठीक है। अगर ये सब लीगल, अब जो आगे मैंने आने वाले कुछ स्लाइड्स हैं वो सब लीगल मैटर्स है, ठीक है। सो बट ट्राई एंड अंडरस्टैंड मोर फ्रॉम ओवरव्यू पर्सपेक्टिव। सो क्या क्या डॉक्यूमेंट साइन करने होते हैं, कौन कौन साइन करता है? सो एक आपको बोर्ड रेजोल्यूशन होता है। बोर्ड रेजोल्यूशन क्या होता है? कंपनी का जो बोर्ड होता है वो एक अप्रूवल देता है, उसको बोर्ड रेजोल्यूशन बोलते हैं। सो दैट इज वन रिक्वायरमेंट। आप स्टैम्प ड्यूटी पे करते हो, ये आपको पता है, टैक्सेशन, कोई भी आप एसेट खरीदते हो उस पर आपको स्टैम्प ड्यूटी पे करना पड़ता है। व्हेन यू बाय द प्रॉपर्टी तब भी आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, ठीक है। बहुत सारे डिस्क्लोजर्स करने पड़ते हैं, ये सब अपना कंपनी सेक्रेटरीट का काम है, ठीक है। आपको सर्टिफाइड ट्रू कॉपी सबमिट करनी पड़ती है सारे बोर्ड रेजोल्यूशंस की, अप्रूवल्स की। बोर्ड रेजोल्यूशन में हमने बात कर लिया। ऑथराइजेशन होना चाहिए। सो फॉर एग्जांपल व्हेन कंपनी इज रेजिंग फंड्स, तो आई डोंट नो, आपको पता नहीं करा, कंपनी का एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है, एक आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है। तो उसमें ऑथराइजेशन होती है कंपनी कितना फंड्स रेज कर सकता है, तो वहां पे वो ऑथराइजेशन होना चाहिए। अगर नहीं है ऑथराइजेशन तो अमेंड, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन या मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को अमेंड किया जाता है, ठीक है। फिर जब सारे अप्रूवल आ जाते हैं तभी आप फंड रेज कर सकते हो, ठीक है। ये अगेन सब लीगल मैटर्स। आगे वाला आने वाला सारा स्लाइड्स इज मोर ऑफ द लीगल मैटर्स। तो अगेन अप्रूवल्स लगते हैं, एफडीआई के अप्रूवल्स लगते हैं, ठीक है। शेयर परचेज एग्रीमेंट साइन होता है, ठीक है। लॉयर्स की अपनी एक चेकलिस्ट होती है, वो सब देखते हैं। देन क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देते हैं, रेजोल्यूशन होते हैं, मिनट्स होते हैं बोर्ड मीटिंग के, शेयर सर्टिफिकेट्स होते हैं, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होते हैं,
लॉयर ओपिनियन, ये सब लीगल मैटर्स है, ठीक है। सो देखिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड, जब आप प्राइवेट इक्विटी कर रहे होते हैं, सो दो पार्ट होते हैं, वन इज द फाइनेंशियल साइड एंड सेकंड इज द लीगल साइड। आप जब फाइनेंशियल साइड अपना वैल्यूएशन वगैरह सब क्लोज कर देते हैं, देन द लॉयर उसको लीगैलिटी के फॉर्म में लाने के लिए कुछ लीगल एग्रीमेंट या लीगल प्रोसेस करते हैं। वो पार्ट है जो इस आने वाली स्लाइड्स में, ये इन स्लाइड्स में चल रहा है, विच यू डोंट नीड टू अंडरस्टैंड इन टू डेप्थ, बिकॉज आप वो नहीं करने वाले, करेक्ट। बट हाँ, पता हो कि हाँ ये ब्रॉडली ये प्रोसेस होता है, दैट इज व्हाट द इंटेंट ऑफ दीज स्लाइड्स आर। फिर जब डील साइन होता है, सो अगेन स्टैम्प ड्यूटी पे करना था, मैंने आपको बता दिया। और वो डील कौन साइन करते हैं? जो ऑथराइज सिग्नेटरीज होते हैं। अगर कोई और साइन करेगा तो कोई फायदा नहीं है, उसका कोई वैलिडिटी। जैसे आपके चेक पे अगर मैं साइन कर दूंगा तो चेक पे तो कोई वो नहीं, बिकॉज बैंक को सिग्नेचर्स मैच नहीं करेंगे, ठीक है। देन शेयर परचेज एग्रीमेंट मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और एक होता है शेयर एंड वारंट परचेज एग्रीमेंट, फिर होता है शेयर सब्सक्रिप्शन शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट। सो डिपेंडिंग अपॉन आप शेयर्स को वारंट में कन्वर्ट कर रहे हो या शेयर्स को सब्सक्राइब कर रहे हो, डिफरेंट डिफरेंट लीगल एग्रीमेंट्स होते हैं। एक शेयर स्वैप एग्रीमेंट भी होता है, अगर आप अपने शेयर्स को स्वैप कर रहे हो किसी दूसरे के साथ, ठीक है। सो द लीगल टीम डिसाइड्स कि किस तरह का एग्रीमेंट साइन करना है। कंपनी सर्टिफिकेट इशू होता है, न्यू इन्वेस्टर सर्टिफिकेट आता है, बोर्ड मीटिंग होता है, शेयर्स इशू होते हैं, इन्वेस्टर्स पैसा देता है, एंड देन फाइनल जो रजिस्ट्रार ऑफिस होता है। रजिस्ट्रार ऑफिस क्या होता है? कंपनी का एक ऑफिस होता है जहाँ पे शेयर होल्डर्स का नाम होता है। सो जब प्राइवेट इक्विटी शेयर्स खरीद लेती है तो वहां पे कंपनी जो रजिस्ट्रार होता है वहां पे प्राइवेट इक्विटी का नाम एज एन ओनर और एज ए इक्विटी शेयर होल्डर्स चेंज हो जाता है। ठीक है, अगेन सेम चीजें यहाँ पे हमने देखी, नथिंग विच स्पेसिफिकली सेम चीज। कंपनी शेयर्स इशू करती है, अलॉट करती है, देन आप प्राइस पे करते हो, एंड देन फाइनल जो है रजिस्ट्रेशन, आपका जो रजिस्ट्रार होता है वहां पे वो अपडेट हो जाता है। कुछ स्टैट्यूटरी अप्रूवल्स या स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स है। सो सपोज अगर आप एक बैंक में इन्वेस्ट करें तो आरबीआई अप्रूवल लगता है। कुछ कंट्रीज में आरओसी फाइलिंग्स होती हैं, पेमेंट्स करनी है, आपको टैक्स इशू है तो टैक्स का आपको मैटर देखना पड़ता है। एंड देन फाइनली आप एक मीडिया में अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप एक प्रेस रिलीज भी इशू करते हो। देन फाइनली विच गेट्स अनाउंस्ड इन द मीडिया कि ये कंपनी ने इतना इसमें इन्वेस्ट किया या ये प्राइवेट इक्विटी ने इन्वेस्ट किया। ये मैंडेटरी नहीं होता है मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में। आपको मीडिया में रिलीज करना है तो आप करते हो, नहीं करना है तो नहीं करते हो। सो दिस इज नॉट समथिंग विच इज मैंडेटरी। क्या क्या इश्यूज आ सकते हैं? लीगल इश्यूज, आई थिंक वी डिस्कस दिस। कुछ लीगल मैटर आ गया, कुछ आ गया, अगेन द लॉ इज गेट इन्वॉल्व। कोई लिटिगेशन है, ठीक है। मिसमैच इन रिजल्ट्स, ठीक है। कंपनी के जो पुराने रिजल्ट्स हमने फोरकास्ट करे थे और कंपनी के जो अभी रिजल्ट्स आ रहे हैं वो मैच नहीं कर रहे हैं, वो डिसएग्रीमेंट्स हैं, ठीक है। वैल्यूएशन पे बहुत डिसएग्रीमेंट्स होते हैं। यू बिलीव कि वैल्यू शुड बी एक्स, समबडी बिलीव्स वैल्यू शुड बी वाई। सो वो है प्रीवियस इन्वेस्टर्स। तो जैसे मैंने एग्जांपल दिया, लेकिन राहुल ने इन्वेस्ट किया हुआ था और वो एग्जिट कर रहा है और सिद्धार्थ आ रहा है, तो उन दोनों के बीच में कुछ कुछ इश्यूज है जो सेटल नहीं हो पा रहे, तो वो भी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। हाँ जी, कोई डाउट इस सेक्शन में? सारा लीगल सेक्शन है। सो अगेन आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग टू मच फॉर यू टू गेट इनटू डिटेल, बट स्टिल थोड़ा ओवरव्यू पता होना चाहिए। Any questions on this section before I go to the last section? Okay. So again, sorry Siddharth, हाँ बोलो। नो सर, क्लियर। ठीक है, यहाँ पे एक पुराना एग्जाम्पल दे रखा है, अगर आपको इसमें इंटरेस्ट हो तो हाँ ये चीज है, थोड़ा सा आप देख सकते हैं। सो 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 जैसे प्राइवेट इक्विटी का है, सो लेट्स एक
एक कंपनी में, एक आईडी में इन्वेस्ट करना है, वहां पे 5 लोग इंटरेस्टेड, यानी 5 प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्ट इंटरेस्टेड है, तो 5 टर्म शीट्स आपके पास टेबल पे है। ठीक है, प्राइस डिस्कवरी आप कैसे करेंगे? अगर 5 लोगों ने बिडिंग करी है तो आपको कंपैरिजन मिल जाएगा मार्केट में आपकी वैल्यूएशन क्या चल रही है, आप कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, और Yes, फिर लेट्स से आपने चूज किया एक ब्रांडेड प्राइवेट इक्विटी को, आपने चूज कर लिया कि मुझे किस कंपनी का प्राइवेट इक्विटी चाहिए, तो आपके पास 5 थे, आपने चूज कर लिया। देन ड्यू डिलिजेंस होता है, ऐसे 30 डे का टाइम डिसाइड हुआ, 30 डे में वो ड्यू डिलिजेंस होता है। और ड्यू डिलिजेंस के बाद इफ यू वांट टू रीवैल्यू द डील, अगर नंबर्स आपके मैच नहीं करते हैं जो आपने स्टार्टिंग में लिए थे, ठीक है, अगर आप रीवैल्यू करते हैं तो देन यू माइट डू सम काइंड ऑफ इन चेंजेस अगर आपको जरूरत है तो। ठीक है, वो करने के बाद फाइनल वैल्यूएशन एंड देन एग्रीमेंट साइन होता है, व्हिच इज एसपीए, शेयर परचेज एग्रीमेंट। ठीक है, सो दिस इज वे इट गोज। ठीक है, देन आपका फाइनल क्लोजर पार्ट होता है, जिसमें मैंने आपको बताया कि पेमेंट करके रजिस्ट्रार ऑफिस में आपका जो एज अ शेयर होल्डर्स की लिस्ट में जो नाम अपडेट होता है वो नाम। सो आई थिंक फ्रॉम दिस स्लाइड आई वुड प्रेफर आप ये वाली स्लाइड को ज्यादा प्रेफर करें, जो हमने पीछे प्रोसेस देखा था, ये वाला। तो ये 34 एंड 35 इज व्हाट आई बिलीव इज इम्पोर्टेंट स्लाइड। उसके बाद तो उसी को एक्सप्लेन किया हुआ, या प्रॉब्ली मोस्ट ऑफ द पीसेस इज आपका लीगल मैटर्स है। So this brings us to the end of this module. कुछ डाउट है, कुछ क्वेरी है तो पूछिए। Sir, I don't know if the Yeah. word right. Restructuring. Restructuring क्या होता है सर? चेंजेस, आपने जो पहले टर्म्स एंड कंडीशंस करते हैं, उस टर्म्स एंड कंडीशन में आप चेंजेस लेके आते हैं, उसको रीस्ट्रक्चर बोलते हैं। Okay, okay. Thank you. स्ट्रक्चर मींस टर्म्स एंड कंडीशन, उस टर्म्स एंड कंडीशन को आप जब रीसेट करते हो तो उसको रीस्ट्रक्चर बोलते जाते हैं। हाँ जी, एनी अदर क्वेश्चन? सर जस्ट लाइक एग्जांपल, जैसे जियो ने रिलायंस इंफोकॉम के इंफ्रास्ट्रक्चर को बाय किया, तो वो वैल्यूएशन में होगा या फिर मर्जर एक्विजिशन टाइप कुछ है? नहीं, बाय किया है, सो बाय में दोनों पार्ट है, करेक्ट। सब आप बाय करते हो उसको, तो दैट इज बाय आउट। और वो बाय आउट करने के लिए ऑफ कोर्स आपको वैल्यूएशन करने की जरूरत है, तो आप वैल्यूएशन करके बाय करोगे। तो उसमें एमएनए का भी पार्ट आता है, वैल्यूएशन के पार्ट भी। इनफैक्ट कल देखा था ना हमने, कल जब हम वैल्यूएशन सॉरी हम एमएनए का पार्ट करते उसमें वैल्यूएशन भी आया था। सो एमएनए कैन नॉट गो विदाउट द वैल्यूएशन ना। आप एक कंपनी को कैसे एक्वायर करोगे विदाउट नोइंग उसकी वैल्यू क्या है? ओके सर। हाँ जी, एनी अदर क्वेश्चन? Sir, just expanding on Piyush's question there, like how Reliance took over DEN Networks और एक था, उसमें उन्होंने एक ये किया था, शेयर ट्रांसफर कुछ तो किया था, जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स थे डेन नेटवर्क और दूसरे के, तो वो क्या था सर? So suppose if I'm buying your company के shares, so the one way is I pay you cash and you give me shares. इसको cash consideration बोलते हैं। राहुल, ये क्लियर है? हाँ सर। दूसरा होता है in kind consideration, which means I give you shares of my company and you give me shares of your company. Rather than paying you cash, let's say आपके कंपनी का शेयर 100 रुपीज का है, मेरी कंपनी का शेयर 50 रुपए का है, तो आपकी कंपनी के एक शेयर के एक्सचेंज में आपको अपनी कंपनी के 2 शेयर्स दूंगा, इसको स्वैप रेशियो बोलते हैं। तो ऐसा भी होता है, रादर देन पेइंग कैश आप वो पे करते हो अपने शेयर्स की, अपनी कंपनी के शेयर्स के थ्रू पेमेंट कर देते हो। दिस इज व्हाट यू आर रेफरिंग टू, सेकंड वन। Okay, sir. So we are expanding our number of shares, right?
आप इंक्रीज भी कर सकते हो, अगर इंक्रीज नहीं करे तो वही पुराने नंबर ऑफ शेयर है बट आप किसी और को दे देते हो। दोनों फॉर्म पॉसिबल, आप इंक्रीज भी कर सकते हो, विदाउट इंक्रीज भी कर सकते हो। ओके सर, थैंक यू। हाँ जी, एनी अदर डाउट? तो ये टॉपिक क्लियर है। चलिए ठीक है। ओके सर। Okay. So this completes our this part. जस्ट एक हाँ मिनट। सिद्धार्थ। तो ये जॉब मीन्स एक्चुअल, अभी हमें अगर इंटरव्यू देना है जॉब के, इससे हम लोग को अगर इसमें अगर कुछ देखने हैं कुछ पॉइंट्स, तो कौन से पॉइंट्स ऐसे जो मेजर पॉइंट्स है? हाँ, मैं स्टार्टिंग से बताता हूँ कि इस सेक्शन में काफी सारी चीजें हैं जो आपको इग्नोर करना है। इग्नोर मतलब शायद इतना अटेंशन पे नहीं करना है। सो मैं आपको स्टार्टिंग से बता रहा हूँ। सो ये मुझे पता होना चाहिए पूरा M&A प्रोसेस, ठीक है। ये सेम है, इसी को डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है स्लाइड्स में। तो ये पूरा मुझे पार्ट पता होना चाहिए यहाँ तक। अब ये सेल साइड बाय साइड आपको अलग अलग करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देन क्या क्या फैक्टर्स है जो M&A में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, सब पता होना चाहिए। ये वैल्यूएशन का यहाँ से नहीं करना है, जो लेवल 2 में मैंने वैल्यूएशन करा है वो पार्ट वहां से करना। तो ये वाला वैल्यूएशन का सेक्शन आप स्किप कर दीजिए यहाँ से। और उसके बाद ये टाइप्स पता होना चाहिए, और उसके बाद ये डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस, और ये वाला पार्ट 34 एंड 35 ये सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। उसके बाद के जो ये लीगल मैटर्स है ना, ये आप पढ़ लो बट नॉट इन टू मच ऑफ डिटेल, आपको जरूरत है। ओके सर, लीगल मैटर्स, ठीक है सर। सो M&A वाला पार्ट, प्राइवेट इक्विटी वाला पार्ट, ये दो पार्ट आप यहाँ से पिक करोगे। जो वैल्यूएशन वाला पार्ट है वो लेवल 2 के वैल्यूएशन से पिक करो। ये है जो इस मॉड्यूल से या इस PPT से जो हमारे को इंटरव्यू के लिए लेना है। ओके सर, गॉट इट। ठीक है, चलिए। सो आप लोगों को मैंने आई हैव टोल्ड यू कपल ऑफ थिंग्स। सो वी नाउ विल स्टार्ट विद दैट प्रोसेस ऑफ नेक्स्ट क्लास से, जो मैंने आपको बोला था कि आपके रिज्यूमेज, इंटरव्यू मॉक्स वगैरह शुरू हो जाएंगे, ठीक है। बिकॉज वी आर डन विद द कंटेंट पार्ट ऑफ इट नाउ, ठीक है। सो आप लोगों ने रिज्यूमे, मैंने आपको रिज्यूमे बोला था, रिज्यूमे अपडेट अगर नहीं करें तो प्लीज कर लेना, बिकॉज नेक्स्ट क्लास में आपके रिज्यूमे के सेशन स्टार्ट हो जाएंगे। दूसरा मैंने आपको प्रेजेंटेशन के बोला था, आई टोल्ड यू सेलेक्ट कंपनी, तो वो सब हो गया, कंपनी सेलेक्ट कर लिया आप लोगों ने सबने। एनीबडी हु स्टिल स्ट्रगलिंग, और कोई कंपनी अभी तक आपने सेलेक्ट नहीं किया, ऐसा कोई है? ठीक है, आई टेक इट कि आपने अपनी कंपनी सेलेक्ट कर लिया। मैंने बोला था आपको इंडियन लिस्टेड कंपनी सेलेक्ट करना है, एंड उसके ऊपर क्या क्या अप्लाई करना है मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। वो स्टार्ट कर दीजिए। कोई डाउट है, क्वेरी से पूछ लीजिए। आपके प्रेजेंटेशंस शेड्यूल होंगे वंस वी आर डन विद आवर इंटरव्यू एंड रिज्यूमे सेशंस, ठीक है। बट इट विल टेक सम टाइम फॉर यू टू प्रिपेयर दैट प्रेजेंटेशन। एज आई सेड अर्लियर, आपके प्रेजेंटेशन की आपकी स्कोरिंग सर ये इसमें आपने कंपनी सिलेक्ट करने के लिए, ठीक है कंपनी सिलेक्ट कर दी। अभी जैसे मैंने अमूल सिलेक्ट की है सर, ओके, जस्ट अभी कल रात को ही। तो लेकिन मुझे उसमें वो समझ में नहीं आ रहा कि रेशो का आपने बताया था कि रेशो का आपको एक प्रेजेंटेशन बनाना है, तो वो समझ में नहीं आ रही कि कैसे करना पड़ेगा। रेशियो तो बहुत बाद में आएगा सिद्धार्थ, उससे पहले आपको उस कंपनी का बिजनेस मॉडल करना है। लिख हाँ लीजिए जैसे दोबारा अगर आप लोग को लिखना है तो। फर्स्ट बिजनेस मॉडल, वो पोस्ट पेस्टल बीसीजी। फर्स्ट बिजनेस मॉडल, ओके, ठीक है। लिख लेता हूँ सर। हाँ, फर्स्ट बिजनेस मॉडल होगा, देन पोर्टर मॉडल होगा, देन शॉर्ट होगा, फिर पेस्टल होगा, फिर BCG होगा, और फिर PLC होगा। इसके बाद आएगा आपका रेशियो। और रेशियो में सारे रेशियो नहीं लगेंगे आपको, 2 to 4 की रेशियो जो आपको लगता है वो आप लगाएंगे, सारे रेशियो मत करना। दिस इज व्हाट यू नीड टू डू। तो फर्स्ट आपने बोला बिजनेस मॉडल, बिजनेस, पोर्टर, ओके शॉर्ट, ठीक है, पेस्टल, ओके
BCG, हाँ PLC, PLC, ओके and then ratio, 2 to 4 ratios. ठीक है Sir, for ratios, you have to go to their financial statements like balance sheet and P&L. Of course. Put in a presentation also the financial statement. नहीं आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंटेशन में डालने की जरूरत नहीं है, बट आप वो लेट्स यू आप यू आर टेकिंग वन पर्टिकुलर रेशियो, तो वो रेशियो को आप स्लाइड में डाल सकते हैं, नॉट एवरीथिंग, ओनली ऑन दैट रेशियो यू कैन पुट इन द स्लाइड। अदरवाइज तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्लाइड्स में डालोगे तो इतना बड़ा हो जाएगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट डालने की जरूरत नहीं है। वो तो आप लिस्टेड कंपनी सिलेक्ट करो, जो कंपनी होगा मैं निकाल लूंगा उसकी वेबसाइट से, दैट्स ओके। सर इसमें अभी और एक सर डाउट है, ये जो रेशियो के लिए ना जो करंट फाइनेंशियल रिपोर्ट है लाइक मैं 1920 का दूंगी या 2020, तो वो नहीं मिल रहा है सर। मुझे जो मिला वो सर 1819 का मिला, तो वो चल जाएगा सर? नहीं देखो, जो भी लेटेस्ट अवेलेबल, ऐसा नहीं होना चाहिए मैं जाके ढूंढ लूं तो मुझे अमूल की वेबसाइट पे 1920 मिल जाए। सर मैंने बहुत ट्राई किया सर एक्चुअली, थोड़ा सा बहुत सिद्धार्थ बहुत ट्राई का डेफिनेशन आई लीव इट टू यू। व्हाट आई एम सेइंग, आप अगर मुझे बोलोगे 1920 नहीं है, मैं जाके चेक करूंगा वेबसाइट पे, मैं वेबसाइट पे ही करूंगा बस। अब वेबसाइट पे मुझे भी नहीं मिलता देन 1819 इज ओके। मुझे अगर वेबसाइट पे मिल जाता और आपको नहीं मिल रहा तो फिर प्रॉब्लम है ना। ठीक है सर, मैं ट्राई करता हूँ सर, डेफिनेटली आई विल ट्राई माय बेस्ट। Yes, Rahul. When we are doing Porter 5 forces model, हमको कंपनी के एवरी टाइप ऑफ प्रोडक्ट के साथ करना पड़ेगा, पूरे कंपनी को ही ले सकते हैं, मतलब एवरी प्रोडक्ट को ले सकते हैं, मतलब उनका थोड़ा थोड़ा डिफरेंट प्रोडक्ट आता है ना। बोथ वेजेस ओके, आप जैसे भी करना चाहो, आप एग्रीगेट कंपनी लेवल पे करना चाहते हो वैसे कर लो, आप किसी पर्टिकुलर सेगमेंट को लेके करना चाहते हो वैसे भी कर सकते हो। सर जैसा मेरा I have the one I have taken is called Colgate Palmolive, so based on its like Colgate में ब्रश है, क्या बोलते हैं, टूथपेस्ट है, माउथ वॉश है, so उसको ईच आइटम के लिए सेपरेट कर सकता हूँ या क्या करूँ? ये सब एक ही सेगमेंट है ना, ऑल दीज आर रिलेटेड टू वन डेंटल सेगमेंट करे, तो आप सब ओवरऑल करो इसको। हाँ, जो ओके सर, आप बीसीजी बनाओगे और जो पीएलसी बनाओगे उसको अलग अलग प्रोडक्ट पे कर लेना, पोर्टर मॉडल को एग्रीगेट करो। ओके सर, थैंक यू। हाँ जी, और कोई डाउट? सर और एक था, बिजनेस मॉडल कहाँ से पता चलेगा सर? आई ट्राइड फाइंडिंग इट्स बिजनेस मॉडल बट आई डिडंट अंडरस्टैंड, मतलब एनुअल रिपोर्ट में पढ़ना पड़ेगा, कहीं रेडिली अवेलेबल नहीं हो, एनुअल रिपोर्ट में पढ़ोगे तब मिलेगा। एनुअल रिपोर्ट और कंपनी की वेबसाइट पे आपको मिलेगा, बट रेडिली नहीं लिखा होगा ऐसा बिजनेस मॉडल को आप कॉपी पेस्ट करो, आपको पढ़ना पड़ेगा। ओके सर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चंस और कुछ है? और सर एक वो कोर्स में वो दिया हुआ था इक्विटी रिसर्च रिपोर्ट, तो वो भी सर इसी का पार्ट होगा? करवाऊंगा। जो आप बना रहे हो ना वो एक तरीके की वही बन जाएगी, तो ये वाला पार्ट मैं कराऊंगा आपको, मतलब दिखाऊंगा भी, बताऊंगा। जो हमने मॉडल बनाया ना अर्पित, वो इक्विटी रिसर्च का ही पार्ट है। इक्विटी रिसर्च में क्या होता है, एक पार्ट हो, एक सेशन होगा, उसमें आपको बताऊंगा, पूरा आपको पिक्चर दिखेगा। So we'll do this, don't worry. Okay, thank you sir. मैं भी जानबूझ के रोका हुआ बिकॉज अभी सॉरी अर्पित, मैंने इसलिए इसको रोका हुआ बिकॉज अभी आप एक बार कंपनी सिलेक्ट करके उस कंपनी के बारे में थोड़ा सा पढ़ना शुरू करोगे, तब जब मैं कराऊंगा ना तो आप उसको ज्यादा कोरिलेट कर पाओगे। अच्छा हाँ, ये मैंने देखा है, अच्छा सर मेरे को इसमें क्वेरी है, इसलिए मैंने अभी ये वाले पार्ट को रोका हुआ है। We'll do that. Harold. Sir, this is not with respect to presentation or anything, just general knowledge. जब कंपनी कोई अपना प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रही है, एग्जांपल इंडियन बेस्ड कंपनी इज एक्सपोर्टिंग आउटसाइड, सो उसका जो फॉरेन एक्सचेंज का जो वैल्यूएशन आता है वो कौन हैंडल करता है? द कंपनी इटसेल्फ और डज इट गिव इट टू अ स्पेशलाइज्ड काइंड ऑफ अ कंपनी व्हिच परफॉर्म्स ऑल दिस एंड हैंडल्स ऑल इट्स रिस्क्स? So
When you say foreign currency का valuation, so what does that mean? Foreign currency का valuation, you mean कि exchange rate क्या होने वाला है, is that? और कि मैंने अगर कोई foreign exchange का exposure लेके रखा है उसकी accounting valuation, कौन से valuation की बात कर रहे हो आप? सर पहला वाला मतलब if I have got a order from example US for 1,000 units, मैंने ऑलरेडी उसका वैल्यूएशन बुक करके रखा है, देन और मेरे को उस टाइम पे करना है. आई डोंट नो इफ इट कैन आइदर बी स्पॉट प्राइस और टुडेज डिसाइडिंग प्राइस. तो उसके बाद में जो प्रॉफिट और लॉस आता है सेलिंग के टाइम पे, तब कौन वो मैनेज करता है? मतलब द कंपनी इटसेल्फ डज इट और इट हायर्स Most of the time कंपनी की ट्रेजरी टीम हैंडल करती है. Sorry, Ishan, was that for me? Ishan, mute पे जाओ. I think are you speaking to someone else? So any other question, guys? ठीक है. So resume में कुछ I hope आपने resume update कर लेंगे. As I said, full fledged session होगा resume. I'm not expecting आप एक बेस्ट resume लेके आए, बट आपकी कैपेसिटी में जो भी आपकी शेप एंड फॉर्म में है, based on whatever your understanding, ensure कि आप नेक्स्ट क्लास में अपना resume कैरी करें, because मैं आपको स्क्रीन शेयर करूंगा, which means I will give you right to share your screen and I will see your resume and then I will give you those individual feedbacks. क्लियर है? नेक्स्ट क्लास में क्या लेके आना है आपको? रिज्यूमे लेके आना है, एंड पैरेलल आप प्रेजेंटेशन पे काम करना स्टार्ट करिए. ठीक है. प्लीज बी रेडी कि जैन के एंड ऑफ द वीक और प्रोबेबली थर्ड वीक और प्रोबेबली फोर्थ वीक में आपके प्रेजेंटेशन शेड्यूल होंगे. देन डोंट जंप अप एंड डाउन कि हमारे को टाइम नहीं मिला. मैंने आपको वेल इन एडवांस बता दिया कि और पैरेलल जो हमारे सेशंस चल रहे हैं, प्लीज कम बैक. कोई भी डाउट है कि सर मुझे ये क्वेरी है, कुछ भी है, प्लीज कंटिन्यू टू रेज एंड आस्क अगर कोई डाउट्स क्वेरीज आपको आ रहे हैं. सर रिज्यूमे सेशन नेक्स्ट संडे रह सकते हैं क्या? संडे, Sorry? नॉट सैटरडे. सैटरडे क्लास सेशन, संडे सेशन रह सकते हैं रिज्यूमे सेशन? आप संडे को कर लेना, क्योंकि सैटरडे को सबका तो हो नहीं पाएगा. सैटरडे तो कुछ लोग का सैटरडे होगा, कुछ लोग का संडे होगा, क्योंकि सबका एक साथ रिज्यूमे कैसे देख पाएंगे. तो बट सैटरडे को अगर क्लास होगी तो होगी. आप अगर नहीं हो तो आप अपना रिज्यूमे मुझे संडे को दिखा देना. संडे को भी तो सेशन होगा. ओके सर. हाँ राहुल. It will be this week, the following week as well as the week after that, right? और कैसे करेंगे? We'll see. डिपेंड करता है कि अगर उस वीकेंड पे सबके रिज्यूमे देख पाए तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो स्पिल ओवर होगा. We'll see ना. अभी कुछ कमिट नहीं कर सकते कितना खत्म होगा. अगर सब लोगों का रिज्यूमे खत्म हो जाता है वो सैटरडे संडे में, तो नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक आएगा. अगर नहीं खत्म होता, प्रॉब्लम वी हैव नो चॉइस बट टू कैरी फॉरवर्ड. ओके सर. थैंक यू. ठीक है. लास्ट टाइम एनी अदर क्वेश्चन गाइस? Please start focusing on your interviews and presentation. This is very very important from this program in the journey. आप लास्ट लैब पे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. यू पुल दिस कोर्स वेल सो दैट आपको आगे प्लेसमेंट्स में और जहाँ पे भी आप जरूरत पड़ेंगी इस कोर्स की, आपको हेल्प मिले. ठीक है. So in case nothing else, probably we'll call this close and we'll connect in the next class. Please carry copy of resume with yourself. Okay. And then we'll take it forward from there. ठीक है. चलिए. Thanks. Bye. Thank you, sir. Thank you, sir.